and you have weight. This is pulled by a small amount. Question is, due to this extra extension of delta L, right, how much is the work done against the interatomic force of the wire? जिसकी इलास्टिसिटी जिस मटेरियल में हम इंटरेस्टेड हैं वो ये है. सो उसके एटॉमिक लेवल पे देयर इज अ पुल, spacing has come in. What work has gone into creation of this spacing? And so whatever work you did gets stored inside the wire in the form of elastic potential energy. So the force you applied is equal to YA multiplied by L by L. This was a force that you applied by way of the weight or some pull. ये इसका weight था mg is equal to F. अब जब ये it started getting down, तब ये delta L elongation आ गई, then the force varies with length. So if L is the current length, the final length will be delta L, L plus delta L, sorry. So the initial force is this and final force is this. And during this elongation, there will be complete variable force between these 2 points. Force will continue to vary as you move, which means smaller is the delta L, the force will change. So you can move from initial to final in 100 steps of maybe 1,000th of a millimeter. So each step, the force is variable. Force is dependent on the elongation. So elongation is not happening in 1 second, but slowly. कई बार क्या होता है, टाइम नहीं होता. No time is provided to elongation. It is done without spending time. लेकिन इधर slow gradual process है, तो ये force बहुत सारी जनरेट होती हैं जो restoration force हैं. इनिशियल ये और फाइनल ईयर, इसके बीच में जैसे जैसे इलोंगेशन होगी नई नई फोर्स आती रहेगी. 2 3 4 5 जितनी मर्जी आप पकड़ लो. तो आइडिया इज दैट द वर्क डन व्हेन अ extension of a very small amount happens is fdx, and during this fdx dx the force remains constant. ये assumption है, छोटा सा ही है. So this is dw, work done. So force का इधर substitute कर दो, y a x by L into dx, which means when it already got elongated by x at that instant, this is the work stored. ठीक है. This is the work. So if you want to break it down into stress and strain, you can also do that. You can rewrite this as into half of Young's modulus multiply by, this is, you can notice, is L y a x square. So you will integrate it from 0 to w, 0 to L. Y a L square by L is the total work stored. Movement is from 0 to small l. And divide and multiply this by L. Sorry, divide and multiply this by capital L. So this A by L becomes volume. So half Y into volume, and this becomes the strain. Strain square. You want to write Y is equal to stress upon strain. So Y is equal to half multiplied by stress upon strain into volume of the wire, which is the volume of this wire, multiplied by strain square, cancels. So what you get is half stress into strain
into volume. So this is your work done. So sometimes you will get numericals which will either use this formula for work done. बोल देंगे कि इतनी extension हुई है, small l दे देंगे. A wire got extended by an amount of 2 millimeters. The length of the wire was 2 meters. The force on the wire was 20 newtons. The area of the wire was 2.002 meter square or zero point 0.2 meter square. You can find the stress, which is this, and they can also you can find strain also. So either you use the work done gets stored in the form of elastic potential energy. Either you can memorize this, but ये derivation आएगी. Calculate the amount of elastic potential energy stored in a wire which is extended by an amount L. Young's modulus is given for the wire. So variables हैं. Work done is equal to half stress into strain. If you want to find per unit volume basis, take the volume here. So this becomes half stress into strain. Half stress into strain. So it's half stress into strain. Work per unit volume. Joules per meter cube. So Y is equal to stress upon strain is one expression. The second expression is that is linking stress and strain is this one. Half stress into strain is elastic potential energy stored in a wire per unit volume. ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज हो जाते हैं. ऐसे दिया होता है न्यूमेरिकल. ठीक. Any questions in your mind? So you have to start from here. dw is equal to f dx. F is a function of elongation. We know F is dependent on elongation. वो तो पता है ना हमें कि y is equal to f by a. X is the elongation over L. So y into x by L into a is equal to F. So F is a function of elongation. कितनी force generate होगी? It's a function of how much elongation is there. So if the work done is then fx dx, this shows f is a function of elongation. So substitute it yx la dx. Small amount of work done is fx dx. This we know from mechanics. Work done, fdl. The force is in this direction. The displacement is also in this direction. So the angle is cos 0 and here the work done is fds. वैसे तो ठीक है. this is the basic expression. Then when you're integrating, obviously you need definite integral. You need 0 to w and 0 to L. L is the total elongation that happens. Remember, during this elongation, stress is constant because it's F by A. Strain is total elongation upon L. So work done is per unit volume will be half stress into strain. What about गया? क्या है? थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत तो आ गया. We are trying to calculate the work done ओके. when the wire is subjected to a stress and a strain. ठीक. ना तो पता है. That is the context of this discussion. This will be in volume 1 or volume 2. Volume?
वॉल्यूम 2। टू। यस। तो जब हमें पहली बार मैंने जब ये देखी थी ना फिजिक्स की दो बुक, जब 11th स्टार्ट हुई थी, मेरी हालत खराब हो गई थी। सबकी हो जाती है। मेरे लिटरली सब तोते उड़ गए थे मेरे, क्या है ये। इट्स अ जंप। इट्स अ जंप फिर फ्रॉम मैंने 10th बोला, स्टैंडर्ड। मैंने उस लोगों को बोल ही दिया था मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, बाय बाय। अच्छा। इट्स अ तो फिर फीलिंग, कॉमन फीलिंग। धीरे धीरे आ जाता है समझ में, ये इतना हार्ड नहीं है। ओके, सो टू वॉल्यूम टू या वॉल्यूम टू। रोटेशनल। मोशन। नहीं नहीं, भी रोटेशन थोड़ी देर कर रहे हैं। अच्छा। इसमें कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो वायर को एक्सटेंड कर देती है बाय डेल्टा एक्स। तो एम बी स्क्वायर बाय आर जो लगाते हैं हम्म। उसमें आर बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। द द वायर गेट्स एक्सटेंडेड, सो देयर इज अ स्ट्रेन इन द वायर। सो समटाइम्स वो एफ निकालना पड़ता है उस, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन का फंडा उसके बाद लगाना पड़ता है। शो यू सम। क्योंकि वायर को पुल कर रहे हो ना, वेट नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ही कुछ तो देयर इज सम। रहेगा। हाँ। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन ग्रेविटेशन। यस, आई थिंक वी हैव हम डन लोग कर ही रखे ग्रेविटेशन। हैं। उसके बाद है ना ये। जस्ट टू गिव यू ग्लिम्स ऑफ। सर ये चैप्टर कौन सी ब्रांच में पढ़ता है फिजिक्स की? सिविल। क्या? फिजिक्स की। हाँ, कौन सी ब्रांच में आता है ये? नो आइडिया। क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं है ये? नहीं यार, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं है। वो मटेरियल सिंगल साइंस। है। हाँ, मटेरियल साइंस। कह सकते हैं। केमिस्ट्री में आती है, फिजिक्स में आती है, या मुझे तो दोनों का इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेशन है। हाँ, वही मुझे लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में है ये। हाँ उसमें तो होगी। गेट। गेट इज फॉर एमटेक। हम्म। मैं तो दूसरा वाला यू गेट वांट बोल टू रहा था। अपीयर फॉर एमटेक। दरवाजे वाला गेट। यू सी द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। हम्म।
Single string means a single tension. So if you connect a wire with W, then the tension in the string, is mg. yeah, like this, away from the string. So hmm, this is mg and this is n. T1. What is N? इसमें जो टेंशन होगी जिस स्ट्रिंग जिस वेट के साथ जुड़ा है उसके बराबर होगी ना टेंशन. T1. सेम ही होगी बिकॉज द W इट्स W राइट फॉर बोथ. इट्स अ कॉमन स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन हो सकती है, दो नहीं. बट इस साइड द स्ट्रिंग इज हाफ. So how much elongation do you anticipate? पहले ऐसे जोड़ा है तो you can find Young's modulus and some elongation, but now the wire has reduced. इस साइड भी elongation होगी थोड़ी और इस साइड भी elongation होगी, तो total elongation आ जाएगी ना वायर की. So you have to apply y is equal to stress upon strain W. ठीक Area है. has not changed. Left side पे if you're saying delta L by L, left side L by 2, sorry. So y into delta L 2 by L is equal to W by A. So delta L is equal to W by A into L by Y into 1 by 2, right? So delta L is only half of what is here comparatively. और इधर अगर हाफ है तो इधर भी डेल्टा एल ही हो रहा है. सेम, ये दोनों सेम है. दोनों को ऐड करोगे तो इतनी एलोंगेशन आ जाएगी ना जो सिंगल वायर में सिंगल वेट के साथ है. ये समझ आ गया. नॉट क्लियर? नहीं. Okay, which point is not clear? I have applied the rule to the right hand diagram. अच्छा. So Young's modulus does not change because the wire is same, ठीक है. weight is same, इधर और इधर, area is same. Now let the elongation on the left hand side be delta L, but what is the original length? This. इसकी L by 2 दी है ना length. ठीक. अच्छा. ओके. समझ आ गया. तो मैंने डेल्टा L निकाल लिया लेफ्ट हैंड हम्म. डायग्राम का एक वायर के लिए. ठीक I है. am applying this to wire number 1. I can apply the same thing to wire number 2. Even wire number 2 will give me delta L is equal to W by A L by Y into 1 by 2. ओके. ठीक है. Now समझ आ apply गया. the same thing here. इंटू एल. हाय भाई. इन दोनों को तो जोड़ना है ना हमने, वायर नंबर 1 और 2 को. हाँ. This is the extension in the first wire. This is the extension in the second wire. Total. सेम ही आ गया. हाफ और हाफ ऐड हो गए. ठीक. नो चेंज. इसमें मैकेनिक्स का थोड़ा सा, मैकेनिक्स क्या मतलब, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंशन.
You know what a catapult is like? कैटापुल्ट। Catapult. हाँ, मूवीज में देखा है मैंने। वो उससे पत्थर फेंकते हैं दूर। हाँ हाँ। पता नहीं भाई, मैंने बंदों को उड़ते हुए देखा है इसमें। ओ, कोई तो मूवी थी। क्या पत्थर फेंकते हैं उससे? क्या बोलते हैं, गुल गुल, वो नहीं होता एक ऐसे पीछे रबड़ खींचते हैं, छोड़ते हैं। अच्छा, स्लिंग शॉट, गुलेल। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग लगा स्लिंग होता है एक। शॉट। स्लिंग शॉट। हाँ। गुलेल। हाँ, गुलेल, यस। कैटापुल्ट। हाँ जी। हाँ, ये गुलेल है। रबर So कॉर्ड you have कैटापल्ट। stretched it to 2 centimeter, right? Which means you have stored elastic potential energy in this, just like a spring. So you will be able to convert that. और इसने उसके बाद क्या करा? वेलोसिटी प्रोजेक्शन एंड द टेंशन इन द कॉर्ड है। मिसाइल थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करा गया? ठीक है, प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, प्रोजेक्टा मिसाइल, ठीक है, 5 ग्राम का पत्थर होगा। हम लोग मिसाइल तो नहीं कह सकते, मिसाइल तो पर बहुत अलग चीज है। हाँ, मिसाइल लाइक। मिसाइल है भी 5 ग्राम से मिसाइल। हो सकता है यूरेनियम। स्कूल तो हाँ। उड़ जाएगा 5 ग्राम से। सर, काश ऐसा होता। दुकान से मिल जाता। भाई ये लो जी, मिसाइल है, 2 रुपीज की only। इसने एंगल नहीं दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगी फिर प्रोजेक्टाइल की। यूजली मिसाइल वैसे 1.5 टन की होती है, कौन सी? जो रियल वाली होती है। ओ, ब्रह्मास्त्र। हाँ, थोड़ा। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो हम्म, इफ यू हैव अ वायर विच इज स्ट्रेच्ड बाय हम्म, सम अमाउंट उसमें, so ये है। हाँ जी। ठीक है, कैटापुल्ट, कैटापुल्ट जो भी है, वन रबड़ कॉर्ड, ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर का है। और ये 10 था यहाँ तक। हम्म, इट इज पुल टिल 12 mm। तो डेल्टा एल भी पता है, हाँ जी। एल भी पता है। Yes, yes। और तो जब ये छूटेगा यहाँ से, तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी इसके अंदर, दैट विल बी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अच्छा, यंग्स मॉडुलस दे रखा है तो हम वो वाला यूज कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो या दूसरा फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू
ऊपर चेक कर लेते हैं ना। ये रहा, वाई इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। स्ट्रिंग वाई स्क्वायर। इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू वाई इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। सो हाफ रबड़ का वो दिया हुआ वाई, वॉल्यूम इज 10 इंटू एरिया इज हाउ मच, 1 millimeter squared. So 1 into 10 raised to power -6 -6। into, अच्छा, मतलब एक क्या कहते हैं, 100 मिलीमीटर होते हैं क्या एक? हाँ क्यों, 1 नहीं, mm नहीं, नहीं, is वन equal एम to एम 10 raised to power -3 नहीं, meters. नहीं सर, सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाँ तो ये तो मिलीमीटर है ना तो बट एरिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ होता है। नहीं नहीं, 10 raised to power -2। 1000 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। वो 1 mm होगा ना यार, एक वन मीटर के एम अंदर एम कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 होते हैं 100 तो होते हैं फिर, और तो मिलीमीटर है नहीं। मिलीमीटर, हाँ फिर रुक जाओ, सही एक तो मिनट लिया रुको। फिर। 1 मीटर सर, 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो ये मिलीमीटर तो स्क्वायर है ना। हाँ, तो मिलीमीटर स्क्वायर तो 10⁻⁻, माइनस क्या कहते हैं, अच्छा -6, ओके। अच्छा, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक ये आ गई ना एनर्जी, वर्क डन, है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सॉरी, ओके, इज बस इक्वल टू समझ हाफ एम वी स्क्वायर। गए। सारी कन्वर्ट हो जाएगी ना काइनेटिक में। हाँ, अच्छा, तो मैं वो निकालनी थी, अच्छा, वेलोसिटी। आ गई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, which means you have to find the stress and then multiply the stress with area, stress into area. काफी स्ट्रेसफुल है ये। एक सेकेंड। एनी डाउट्स? नहीं, समझ आ रहा है। स्ट्रेस निकल जाएगा, ये सॉरी टेंशन, हाँ जी, T/A। निकल जाएगा। ठीक है। सर आजकल आप कोई, आपका सर, आपने कल क्लास, कल आप कहीं गए हुए थे क्या आई टेस्ट के लिए?
गया था यार मैं। अच्छा अच्छा। वो आपके ऑनलाइन कल क्लासेस से हो रही है क्या, आई टेस्ट वाली? वो बंद करके अब मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सेंटर ऑफ साइट, अच्छा अच्छा। सफदरजंग, कल दोपहर को। आई हैव टू डू मसल स्ट्रेंथनिंग। एक्चुअली माय आईज आर परफेक्ट, आई मसल्स आर वेरी वीक। मैं ज्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब आपके सिलरी मसल्स वीक है, इस वजह से आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन भी थोड़ी कम है। ठीक हो गई। ठीक हो गई हो? अच्छा पावर अकोमोडेशन एक्सरसाइज से ठीक करा ली मैंने, बट अच्छा। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वीक है। मतलब आई कांट कन्वर्ज टू थिंग्स मतलब इवेंट्स। आई लाइन्स थोड़ी वीक हो गई है। हाँ नहीं, मसल ही वीक है, तो सिलरी जबरदस्त मसल वीक है। तो हाँ क्या, वही है, पता नहीं कौन सी है, वीक है लेकिन यार बहुत बुरा हाल है। पावर एकोमोडेशन ठीक है फिर? ठीक हो गई। अच्छा, मुझे लगा, बट वो तो सर सिलेरी मसल्स अगर वीक हो गए तो पावर एकोमोडेशन भी ठीक नहीं होगी ना अपने आप। नहीं ठीक हो गई मेरी। तो कोई और मसल होगा शायद आई नहीं का। मसल के पास बहुत सारी पावर होती है यार, इवन द डेप्थ परसेप्शन। हाँ, डेप्थ परसेप्शन जो होती है ना, कि हम्म, आप 3D देख सकते हो कि नहीं देख सकते। नहीं मेरी ठीक हो गई है। फिजिक्स ओलंपियाड। हाँ, देर आर 7 मसल्स, लिवाटर, पेलब्रे, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, अरे क्या मीडियल क्या, रेक्टस। 7 मसल हैं। रेक्टस? ये पीछे होती है जहां से हमारा ये वाइट रंग का जो है ना, हाँ, पीछे जुड़ा हुआ है स्कल में। आई मसल्स। फिर दूसरे हो गए ये शायद, फिर सिलियरी नहीं होंगे। Ciliary is just one of them। हम्म, ये एक्चुअली सिलियरी मसल्स ही है ना जो पावर एकोमोडेशन कंट्रोल रखते हैं। जी। जब भी मैंने एक्सरसाइज करवाई है ठीक हो गया, काफी बेटर हो गया। मतलब मैं इसलिए प्रैक्टिकली लैपटॉप बहुत, सुबह क्लास, अभी क्लास फिर रात को, उसके बीच में आई डोंट सी टीवी, आई डोंट डू एनी एनी स्क्रीन वर्क एट ऑल। यहाँ तक कि जो सीरियल होते हैं मैं सुनता हूँ मैं। अच्छा, पॉडकास्ट। वाह, वो बेस्ट रहता है यार, वो उसमें आंखों का इस्तेमाल भी नहीं है और मज़ेदार बातें भी आपने, होती हैं। अच्छा आपने वैसे अद्वैत से बात करी क्या आपने? मैंने तो करी थी यार, उसके डैड को मैसेज दे दिया था, उन्होंने कहा नोटेड। तो वो आ रहे हैं, नोटेड। ले रहे हैं नहीं क्लासेस? अभी तक तो नहीं आया, पहले आया फिर गायब हो गया। अद्वैत। सर ये थे फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या होते हैं? हम्म, ये क्या लिखा है? द 3 नहीं है, द ही है। अच्छा, 3। वो ऐसे ही है। अच्छा, तो ये 40 kg सस्पेंडेड विद 2 steel wires, हम्म। सस्पेंडेड, लटकी हुई है। हम्म। आई थिंक आई विल गिव यू द डायग्राम। मेरा डायग्राम चाहिए रहेगा। बट डायग्राम में सारा आंसर आ जाएगा यार। बना के सारा देखो। आंसर, एक मतलब होल आंसर विल कम इन इट। मतलब ये ऐसे लटकी हुई है क्या? अरे 2 स्टील वायर कैसे लटकी होती है कपड़े की, कपड़े को संभालने के लिए। कपड़े को संभालने के लिए? कपड़े, कपड़े नहीं डालते सुबह। सुबह डालते हैं वो, मतलब यहाँ कुछ। दूसरी ये दीवार है बैल्कुनी में, सर ये ये तो है, ऐसे वायर लटकी ऐसे नहीं हो होती है जाती कपड़े डालने कुछ। से। हाँ, कुछ ऐसी हो जाती है। हाँ तो यही बता रहा है वो कि 15 डिग्री एंगल बना लेता है हॉरिजॉन्टल से, तो सो दिस इज 15 डिग्री। एक वायर
कटा यूं है, यूं वायर ऐसे हो गई है, एक जगह 15 डिग्री है, दूसरी जगह भी 15 डिग्री है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू वेट ऑफ द वायर? ठीक है, तो विच, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वायर, बीच में ऐसा हो गया, दोनों साइड, या वायर को हैंग करा हुआ है वॉल पे, दिस इज द सेंटर पॉइंट। वेट ऑफ द वेट ऑफ द लाइट, अच्छा ट्रैफिक लाइट इस पे सस्पेंड कर दी है। ओह, हम्म। सो यू हैव गॉन एंड सस्पेंडेड अ ट्रैफिक लाइट। हाँ, यूएस में नहीं होती है ट्रैफिक लाइट ऐसे, यहाँ टांग देते हैं, तो नीचे हाँ, खिंच गई ना ये, फिर तो वायर, कपड़े थोड़ी ना हमारे केस में, यहाँ तो हमने खींच दी यहाँ पे। तो ये 45, तो इसमें टेंशन है, हाँ, हाँ, दिस इज, तो पता ही ये नहीं वाला, था। ये वाला तो कैंसिल हो गया और इक्विलिब्रियम की वजह से। दोनों साइड पे, और ये वाले जो हाँ। हैं दोनों, हम्म। ये ऊपर वाले दोनों भी तो अभी, कैंसिल ही हो जाएंगे। क्यों, ये दोनों तो अपवर्ड है, ये तो बैलेंस करेंगे वेट को यार। दिस इज टी साइन 40, साइन 15, मतलब दिस टू इज ऑल्सो, टी साइन 50। हाँ, तो ये दोनों जो हैं इसको बैलेंस हाँ, नहीं करेंगे, करेगी। तो 2t टी साइन साइन 50। टी। 15 इज इक्वल टू 45 इंटू जी। हाँ जी। टी आ अच्छा, आ जाएगा गया इससे। आंसर। आ गया आंसर। इफ यू सी द वायर, बट साइन वायर में 15 तो क्या होता है? टेंशन तो इधर है ना, साइन 15 क्या होता है? साइन ऑफ 45 माइनस 30 कर लो, साइन ऑफ अरे, ए माइनस बी, वो होती क्या है वैल्यू? वैल्यू 1/2 √2, शायद, पता नहीं है, टेबल में देखना पड़ेगा। सो दिस इज योर टेंशन, टी निकल गया। So if you know the tension, you know that means you know the force being applied inside the wire to pull it. You and both are equal. Radius is also known. तो pi r square भी पता है. तो y is equal to stress upon strain. Stress is tension by area of the wire divided by delta L by L. निकालना है delta L. T निकाल लिया है. A पता है. L भी पता है. निकालना क्या है? ओके, डेल्टा L by L निकालना है. यही निकालना है, सिर्फ स्ट्रेन ही निकालना है. दिस इज अ फ्रैक्शनल इंक्रीज, राइट, डेल्टा L by L. Y पता है, T पता है, A पता है, सो डेल्टा L by L निकाल लो. आ गया, हो गया फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर. ये क्या? ये क्या है? फिजिक्स ओलंपियाड बोले तो आईएफओ, इफो, इतना नहीं पता. इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। सर आपने, एक ना पेपर होता है जीटीएससी करके, आपने सुना है इसके बारे में? पूरा नाम बताओ. सर ग्लोबल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। साइंस का है? हाँ जी, साइंस का होता है। अच्छा. तो ऐसा है कि हमारा हुआ था जे मेंस का लेवल का आता है, पूरा हम्म. सिलेबस 11th का। हम्म. कब हुआ था? हुआ था सर ये, मुझे मतलब 1 महीने पहले हुआ था। अच्छा, ठीक है. ये क्वेश्चन आ सकते हैं स्कूल में. दिस इलास्टिक एनर्जी डेंसिटीज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, कर लेके डेराइव इसको। याद होना चाहिए. याद नहीं है ना मेरे को भी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. गोइंग टू नेक्स्ट पेज.
It's a composite wire. It stretches by a total amount of 0.7 mm. और दोनों की लेंथ अलग अलग है. ओके, 2.2 meters and 1.6. क्या नाम है पेपर का? GTSC. GTS, हाँ जी। ओके, देखें जरा. 12th का भी कोर्स आता है? हाँ, 12th का भी होता है। तो फिर तो 12th में होगा ये. GTSC अमेठी. हाँ। अमेठी करता है ये. हाँ जी, अब मिट्टी करता है। वाह. पेपर है. क्या? पेपर. पेपर? हम्म. नहीं, अभी तो नहीं हुआ, तो क्वेश्चन पेपर सबमिट हो गए थे हमारे। PDF. नहीं, मतलब ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं अच्छा. जो आपको भेज सकते हैं, बस पढ़े भी हो ओके, पोर्टल पे। देखना जरा. अमेठी स्कूल का जोक. वैसे जो पेपर नहीं है ये, बहुत ही खतरनाक है ये। सिमेट्री 2D 3D कॉन्ग्रुएंस छोटी क्लास का है. क्लास 7th में भी होता है ये तो. तो सारी क्लासेस का रहता है, वैसे ये पूरी सारी स्ट्रीम्स के लिए होता है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस। साइंस में नेगेटिव मार्किंग रहती है 11th में। गॉट इट. तो मैं हमारा जब हुआ था हमारा, मैंने तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस करे थे और 50 में से। सैंपल GTSC क्लास 11. मेरे को भेज रहा हूँ, 1 मिनट। बायो भी आई हुई है इसमें. आपको सर अभी 11th की बायोलॉजी आती है क्या? नहीं आती. ठीक ठीक क्वेश्चन है यार, खास तो नहीं है. कौन सा खोला आपने अभी? GTSC क्लास 12th. हाँ, 11th। 12th. हाँ, 11th. ये हो गया. कॉम्पोजिट वायर. कॉम्पोजिट वायर मीन्स व्हाट? वायर इन सीरीज, एक के बाद एक. यही होगा मुझे ना. ऐसा लग रहा है कि कॉम्पोजिट वायर एक थिक वायर होती है शायद एक। ऐसे नहीं होगी एक वायर फिर दूसरी वायर. मतलब सर एक मुझे पता है वायर. क्या अगर कॉम्पोजिट बोले तो। एक वायर इतनी और दूसरी वायर उससे पतली यहाँ पे. और लोड कॉमन है. मोटी मोटी वायर नहीं होनी चाहिए एक? डबल वायर. हाँ। फिर अनइक्वल हाइट मतलब. एरिया ऑफ ये लग क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जिस वायर का। ये लग रहा है मुझे तो. ये थिन वाली है, 0.7 mm और 1.6 मीटर लॉन्ग. और ये 3 mm अच्छा। और 2.2 मीटर और कॉमन लोड है. और थोड़ी सी ये पुल हो गई, थोड़ी सी ये पुल हो गई, क्योंकि लोड ऐसे लगा है हम्म। तो द टेंशन ट्रेवल्स एंड द कॉपर और स्ट्रेन. स्टील वायर से, अच्छा।
दोनों जो है एफ और एफ दोनों में, हाँ। बिकॉज दे आर, लिखा तो नहीं है हाउ आर दे कनेक्टेड, बट ये लिखा है दे स्ट्रेच अंडर अंडर लोड बाय 0.7, तो ये अलग, इसका अलग, इसका अलग। लोड निकालना है आपको, एक कॉपर की है, एक उसकी है। लोड निकालना है, डब्ल्यू, टोटल स्ट्रेच इज 0.7 mm। तो अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय वाई। सो डेल्टा एल वन इज इक्वल टू स्ट्रेस जो कॉमन है, लोड जो निकालना है, मल्टीप्लाई बाय एल 2.2, और इसका कितना है 2.2 वाले का, 2.2 वाली किसकी है, कॉपर की है, तो इसका आ गया 1.1 इंटू 10⁻11। डेल्टा एल टू इज इक्वल टू एफ इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻11। इन दोनों को अगर ऐड कर दें, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू को, इट इज गिवन टू बी 7 mm, इज इक्वल टू एफ इंटू 2.2 तो डिवाइडेड एफ बाय, निकल जाएगा इससे तो फिर, हाँ एफ ही तो निकालना है। निकल जाएगा फिर, कॉमन ले लेंगे ना। हाँ एफ आ जाएगा कॉमन, सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा, दिस इज 2.2 मीटर्स, वाई भी एसआई में है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया mm टू मीटर। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही होगी वायर, लेट मी सी, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। डायग्राम दे देते तो समझ में आ जाता कि हाउ आर दे कनेक्टेड। हाँ सही लिया। ओके नेक्स्ट, अगेन अ नाइस क्वेश्चन। सर मेरे हिसाब से ए का सबसे ज्यादा ग्रेटर यंग मॉड्यूलस होना चाहिए। स्लोप ज्यादा है हम्म। लीनियर पार्ट में। सर वैसे इसका फ्रैक्चर पॉइंट भी थोड़ा सा। यंग्स मॉडुलस तो यार हुक्स लॉ ओबे करना चाहिए ना, यहाँ तक ही है सर। हाँ। अच्छा, इसमें बी में ज्यादा होना चाहिए। रीजन दो भाई। सर क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर कैसे हो गया अभी, स्लोप किसकी ज्यादा है, लोग तो। विच इज मोर, ये है, ये एक छोटा सा एंगल है ये, नहीं। दिस इज क्लोजर टू 90 भाई, ये काफी स्ट्रेट है। एक- इसकी नहीं होगी, ध्यान से देखो, इसका ज्यादा स्लोप है। पर इसका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हाँ ठीक है, देखो डक्टाइल कैसे डिसाइड होता था, व्हाट डिसाइडेड डक्टाइल, द प्लास्टिक एक्सटेंशन, जब वो वापस नहीं आएगा, ये वाला। यहां तक तो इलास्टिक लिमिट थी ना, बट हुक्स लॉ नहीं अडॉप्ट होता था, उसके बाद जरा से स्ट्रेस से काफी ज्यादा स्ट्रेन आ गया, दिस इज द प्लास्टिक पार्ट, प्लास्टिक, इसका प्लास्टिक पार्ट देखो। बट बी की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा नहीं है कंपेयर टू ए।
व्हाट इज यील्ड स्ट्रेंथ? बस क्वेश्चन इज व्हाट विच मतलब मटेरियल हैज लिमिट। ग्रेटर यंग्स मॉडुलस? ए की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? बी की बात कर रहा दिस है। इज इलास्टिक रेंज लिमिट। बट इलास्टिक मतलब वही कह रहे हो, इट लिमिट जो गोज इसकी ज्यादा बैक, है बी की। इट गोज बैक। नहीं, बट विच क्वेश्चन आर यू डूइंग, पहले तो हाँ, पार्ट बताओ। सिर्फ ए वाला ही। हाँ, तो ए में स्लोप देखते हैं ना, हुक्स लॉ के लिए तो सिर्फ y is equal to stress upon strain. Which is more? The slope of stress and strain in the first part. Straight line होता है ना, वो तो हुक्स लॉ। हम्म, स्ट्रेस तो कह इज रही यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल टू, एंगल कम है। हाँ कम नहीं है, तो किसका tan बड़ा है? टेन तो हाँ अच्छा ए का बड़ा है। A का बड़ा है, साफ साफ। तो फिर अच्छा, तो tan विच इज थीटा मोर इसका बड़ा है। डक्टाइल। डक्टाइल इज व्हाट? प्लास्टिक रेंज से फ्रैक्चर पॉइंट तक। बी इज मोर डक्टाइल। हाउ? प्रूव इट। सर बिकॉज ऑफ द इलास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन ए। यार इलास्टिक लिमिट तो होती नहीं ना, इसमें क्या देखते हैं हम? प्लास्टिक एक्सटेंशन देखते हैं ब्रिटल के लिए। ब्रिटल नहीं ना, ये तो वो है हाँ, डक्टाइल। डक्टाइल के लिए क्या देखते हैं? प्लास्टिक एक्सटेंशन टू फ्रैक्चर पॉइंट किसका ज्यादा बड़ा है? मींस मतलब वो थोड़े से स्ट्रेस लगाने से काफी लंबा खिंच जाता है, डक्टिलिटी। दिख नहीं रहा ये? ए का प्लास्टिक ज्यादा है। रेंज, प्लास्टिक रेंज कितनी ज्यादा है? ठीक। इसकी प्लास्टिक रेंज कहाँ पे है? ये इसकी इलास्टिक रेंज है, हम्म, और इसमें वो रेंज ही नहीं है एक्चुअली, प्लास्टिक रेंज कि थोड़े ठीक है से तो स्ट्रेस से स्ट्रेन हो जाए, वो है ही नहीं, विच इज गायब है। मोर ब्रिटल। हाँ, दिस इज ब्रिटल। बी इज ऑल्सो, बी इज ब्रिटल। यस। तो स्ट्रॉन्गर मटेरियल फिर है ए। हाउ डू यू नो स्ट्रॉन्गर? तो ब्रिटल हो गया ना, तो जल्दी टूट जाएगा। नहीं मतलब नहीं, ए कम ब्रिटल है बी से। नो नो नो। ऐसे नहीं होना चाहिए, जिसकी जो सबसे कम ब्रिटल और स्ट्रॉन्गर भी होगा। ब्रिटलनेस का स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है यार? You compare the highest stress being tolerated by A and the highest stress which has been tolerated by B. कंपेयर करो। तो A का ए स्ट्रेस का कहाँ ए तक झेल गया है? स्ट्रॉन्गर है ना। हाँ, A स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसका स्ट्रेस दिख रहा है, फ्रैक्चर से पहले यहाँ तक पहुंचा फ्रैक्चर पड़ा है ये। पॉइंट काफी बड़ा है, मतलब हाँ, ये रहा। दूर है। हाँ, इसका नहीं है, फ्रैक्चर से थोड़ा पहले ही काफी ले गया स्ट्रेस, ये टूटा नहीं है, अब टूटेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप ऑफ वायर, टू वायर्स। सर आपने कभी ओलंपियाड्स दिए हैं ऐसे? हम्म। है नहीं। यस, मैंने स्टेट लेवल क्लियर करा हुआ है मैथ्स में, अच्छा। दिल्ली स्टेट। बाप रे।
ये लो सर, उससे होता क्या, डायग्राम मतलब दिखा दो। कौन सी क्लास में? आई थिंक शायद 8th या 9th थी। अच्छा अच्छा। 9th सी 9th। ये लो जी। कॉफी पाउडर कैसा होता है पीने में? कॉफी पाउडर? हम्म। मैं कॉफी पीता ही नहीं। नो, मिल्क के साथ। तो मैं कॉफी के मतलब मैं इतनी कॉफी नहीं पीता ऐसे, मैं पीता ही नहीं हूँ मैं। ओके। चाय पीता हूँ मैं, अदरक वाली। अरे वाह। बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें वेट बीच में है एक, तो दो अलग वायर्स हैं, तो दो में अलग टेंशन होगी, सेम नहीं होगी अब। हम्म, तो जो इस वायर में जो टेंशन होगी, अवे फ्रॉम द मास। ठीक है। इस तो अवे है, ठीक इसमें है। लाइक 10 G नहीं होनी चाहिए इस दोनों टोटल वेट? नहीं, उसको टच का कर रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर उसको बनाओगे तो। उसके तो नीचे एक और टेंशन है वायर। यू मीन इट हैज तो फ्री नो। another wire like this. If I make a free body diagram for it, one wire is this, the second wire is also away. So this is T1, this is T2. T2। और दूसरे एंड पे जो दूसरा मास है उसमें भी T2 होगी, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। So T2 is 6G actually. And if this is 6G, this is T1, and this is 4G, then T1 is equal to 4G plus 6G is equal to 10G. तो वही मैंने बोला था। हाँ, मतलब तरीका पता होना चाहिए, हाउ द टेंशंस आर ट्रेवलिंग। You can see the mixing of mechanics and this. कंप्यूट द elongations। ठीक है, डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2 रिस्पेक्टिवली, एक वायर की फिर दूसरे वायर की। तो Y1 यह मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखा है हमें और ब्रास का। ठीक। जी। एनी डाउट्स? ये मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ बस। ओके।
Oh, Young modulus is stress upon strain F1 upon uh, sir, A1 is the cross sectional area of wire, steel wire. Hmm? Young modulus. यंग मॉडुलस स्टील का क्या दे रखा था क्वेश्चन में? 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टील वायर की elongation आ गई मेरे पास। ठीक है, अब दूसरे की निकाल लो, ऐड कर दो आंसर। नहीं, इंडिविजुअली निकालनी है, टोटल निकालनी नहीं है। ठीक। तो ब्रास की जो, तो ये वाली जो टेंशन है T2 हम्म। जी, पूछो। 60 है ना? यस। ठीक है, तो डेल्टा L2 होगी 60 इंटू 1। हम्म। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही है, हम्म। तो मॉडुलस है 0.91 इंटू 10⁻11। तो ये आ गई elongation ठीक है, ऑफ। जो भी आई, समझ आ गया क्वेश्चन की नहीं आया, हाँ, इम्पोर्टेंटली। समझ आ समझ आ दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, बाकी तो इट वाज मैथ। ऑल कैलकुलेशन। ओके। ये क्वेश्चन था वो। आई थिंक यस, vertical circle. So if you know vertical circle, it is आई easy. डोंट नो वर्टिकल सर्कल। तो मैंने बस उसकी डेरिवेशन रट के गया था मैं पेपर में। काफी है। लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? सब साफ हो So गया if you मेरा have, तो। अरे, मैं if तो you have a vertical, ठीक है, we will not
vertical circle, and this is your tension. अच्छा. So this is the mass mg. This is the tension towards the center. हम्म. T minus mg is equal to, और अच्छा. यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे the weight plus tension both are providing हाईएस्ट पॉइंट पे जो ओमेगा है, ये लोवेस्ट है. You have to calculate the elongation when. So elongation will be decided by what? The tension in the wire, right? So ये tension अलग है, TH है, ये TL है. TL का वैल्यू निकलेगी. Velocity at the bottom is also known, 2 revolutions. So omega is known here. Radius is known, mass is known, G is known. Calculate TL here. TL निकल गया, ये TH है. वेरिएबल टेंशन होती है ना इसमें. So ओके. calculate TL. If you know TL, then you can find stress. अच्छा. ओके. ठीक है. गॉट इट. एक बार आगे मैं चलो वर्टिकल मैं. सर्कल रिवाइज कर लूंगा एक बार. देखना पड़ेगा. आई डाउट तुम्हारा ठीक है, स्कूल ये कुछ पूछेगा. बट ठीक है, मुझे समझ तो आ गया क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है. इससे स्कूलों पे भरोसा नहीं है. वो पूछ भी सकते हैं. हाँ. वो एक बार पेपर जेई मेंस लेवल को भी बना सकते हैं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है अब तो. जे का जरूर. फाइनल पेपर जेई मेंस एग्जाम्पलर लेवल. से एग्जाम्पलर से भी तो दे सकते हैं. एग्जाम्पलर तो सर वो तो. कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर. बल्क मॉडुलस का रिवर्स होता है, इफ यू रिमेम्बर. हाँ जी. So एक तरह से ये पता चल गया है कि दिस क्वेश्चन इज समथिंग टू डू विद, एंड प्रेशर इज ड्यू टू डेप्थ इज गिवन बाय रो जी एच, बट ये तो क्वेश्चन ही नहीं है. बल्कि की मॉडल. डेंसिटी से. अच्छा. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर एट अ डेप्थ? ओशन वाटर एट अ पानी की डेप्थ. डेंसिटी निकालनी है. अच्छा. ठीक है. कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है, हम्म. तो हमें तो डेंस. वॉल्यूम स्ट्रेन हम मतलब बी इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी बाय बी. बाई. तो हमें करेक्ट. क्या करना. अच्छा. प्रेशर दे रखा है 8 एटमॉस्फेरिक. क्या होता है ये वैसे, इसको पास्कल्स में कन्वर्ट करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये. 1 pascal. 1 pascal इज 1 न्यूटन पर पर मीटर वन स्क्वायर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो पास्कल्स के बराबर होता है? दिया तो है 1.013 इंटू अच्छा. 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर. तो बी इज. वियर्डो क्वेश्चन है यार ये बड़ा. और बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछा डेंसिटी हुआ है, लेकिन हाँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है हाँ हाँ. वो यूज होगा. मतलब यू कैन लिंक मास एंड वॉल्यूम. बट अब वॉल्यूम निकालेंगे पर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मतलब मास भी तो पता होना चाहिए. एम कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा सब में. हम्म. भाई what where is the problem if you notice in the question? This is the problem. This. So क्या. delta V by V is a problem, which means
indirectly saying if you go inside deep, हम्म, if your volume was V, the volume will change here. So delta V is V1 minus V2. Due to depth, the volume changes. हाँ जी। So I can write delta V by V as V1 minus V2 upon V1. ओके, V2 माइनस V1 नहीं होना चाहिए या V1? M by rho 1 minus M by rho 2. ये डेप्थ पे है. डेप्थ डिवाइडेड बाय M by rho 1. तो ये अच्छा बन गया तो 1 M माइनस. तो पूरा। इसको रिप्लेस अगर कर दें हम इसमें, हाँ जी। तो डेल्टा P कितना है? चेंज इन प्रेशर फ्रॉम द सरफेस टू. रो डेप्थ, और हमें नीचे वो पता है सरफेस पे डेंसिटी कितनी है? हाँ, और वन चेंज इन पॉइंट प्रेशर भी मालूम है. द सरफेस इज एक्सपोज टू हाँ वो एटमॉस्फेयर. मैंने यहाँ तो निकाल दिया था, ये कहाँ है? रहा वैल्यू। सब्ट्रैक्ट करा है 79. ये चेंज इन प्रेशर थोड़ी ना ये मतलब वो है, क्या कहते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी है। है. यू टू राइट डेल्टा P ऑल्सो इज गिवन. वो मैंने डेल्टा पी तो मैंने। नहीं लिखा. यू हैव पुट 80. हम्म, Remember the pressure of the water which is exposed to atmosphere is 1 atmospheric, and depth पे it becomes 80 pascal. You are 1 pascal here, so it change in pressure is 79 pascal. So delta P is 79. and this is बट ये मास जो था वाटर का, ये क्या मतलब कट गया? हम्म. अच्छा, ठीक है। रेशियो थी ना. मतलब एक नया फॉर्मूला ही आ गया ओवरऑल। तो ये नेगेटिव के अंदर आ जाएगी, मतलब नहीं नेगेटिव तो। Density at the surface is this. ये डेंसिटी या डेप्थ है. If the pressure goes up, volume decreases, right? तो ये उल्टा होना चाहिए था ना. नेगेटिव साइन भी तो होता है यहाँ पे. So take only magnitude. ओके। ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था।
इधर से आ जाएगा ना डेल्टा वी बाय वी। एनी डाउट? नहीं, समझा नहीं। क्वेश्चन दिया कहाँ से था ये? एसएल है। अच्छा, व्हाट्स श्यामलाल अरोड़ा। श्यामलाल। क्रॉस सेक्शनल यूरिया। क्या दिया? क्रॉस एरिया सेक्शनल होगा एरिया। कहाँ लिखा है? ओ तेरी, क्या टाइपिंग है। यूरिया लिख दिया। सही है। यूरिया। मैं भी देख के हैरान हो गया था, यूरिया क्या होता है भाई? डिप्रेशन। यस। क्वेश्चन सुन के मेरे को डिप्रेशन हो गया। अरे शुभ शुभ बोलो भाई। दूर ही रहना, इससे बड़ा खतरनाक होता है ये। हम्म, 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 ओके। स्टील वायर का वो क्या होता है? यंग मॉड्यूलस। स्टील वायर का यंग मॉडुलस। मतलब डेल्टा एल निकालना है ना, मतलब इलोंगेशन। हम्म। क्या हो रहता है वैसे स्टील का यंग मॉड्यूलस? तो यूज ही नहीं हुआ। हम्म, यूज नहीं हुआ क्वेश्चन में। मतलब इसका होता है स्टील का Y1 2 × 10⁻11।
क्रॉस सेक्शनल यूरिया दे रखा है हमने। हम्म। ये सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है? हम्म। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10⁻⁻⁴। इंटू 10⁻⁻⁴ कर दो अब इसमें। यस। मतलब -6। A mass of 100 ग्राम सस्पेंस 100 जी। 100 ग्राम से कि 100 जी है वो? ग्राम्स लग रहा है। ग्राम से। वो न्यूटन में देना होता है तो किलोग्राम वेट बोलते हैं उसको। 1 न्यूटन फोर्स। सर 10⁻⁻⁵ मीटर आ रहा है मेरा डिप्रेशन। शो मी योर मेथड यार, कैसे करा है? वेयर इज योर डायग्राम? डायग्राम नहीं बनाया मैंने। एफ ले लिया 1 न्यूटन, 100 ग्राम। हाँ, 0.1 × 10। अच्छा, गॉट इट। सही है। बट यार, नहीं ये बिटवीन टू पिलर्स कहाँ पे है? बिटवीन। ये तो बिल्कुल वही केस है, बिटवीन टू पिलर्स। तो फिर टेंशन, ये एंगल थीटा। स्टील वायर, माइल्ड स्टील वायर, 2 पॉइंट के बीच में तो फंसाया नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टली बिटवीन द। हाँ, अच्छा। कहाँ लिखा है? तो यू हैव नॉट इवन ड्रॉन द राइट फिगर ना। सर ऐसा होना चाहिए ना डायग्राम तो। हम्म। पर वायर स्ट्रेट थोड़ी ना रहेगी, बीच में तो डिप कर गई है ना। हम्म, वेट टांगने से इट विल बिकम लाइक दिस। इफ यू हैंग अ वेट इट विल बिकम लाइक दिस। डिप्रेशन तो ये हुआ ना, नीचे से चली गई। हम्म, वही कपड़े वाला केस, ट्रैफिक लाइट वाला केस। बीच में से थोड़ी नीचे आ जाएगी ना। हम्म। डायग्राम सही बनाओ यार। दिस इज द दिस इज द करेक्ट डायग्राम, ये। दिस इज द डिप्रेशन, दिस पार्ट। दिस पार्ट इज द डिप्रेशन। दिस इज T, दिस इज T। लेट दिस एंगल बी थीटा। मैं वो दोबारा अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ।
थीटा। ये टेंशन नहीं है कुछ भी, डायरेक्टली हुक से यहाँ पे टांग रखा है। दिस इज नॉट टू बी टेकन, ओनली टेंशन इज दिस। You just need to find out this part. T sin theta and T sin theta. Because T cos theta will cancel. बिल्कुल सेम है यार। तो 2t sin थीटा is equal to 1 Newton. और And sin theta will be equal to how much? sin थीटा Delta x divided by 1. 1 मीटर की वायर है ना, तो हाँ delta x divided by 0.5. If it is very small, then theta is equal to delta x upon point. बोले तो sin theta is this. ये depression divided perpendicular upon hypotenuse. 1 मीटर है ना टोटल, तो ये हाफ हो गया। वो तो ठीक है बट डेल्टा एक्स क्या है? और अगर वो वायर खिंच गई है तो 0.5 प्लस डेल्टा एक्स हो सकता है यहाँ पे। If it has got extended, then 0.5 plus delta it. निकालना भी डेल्टा है। हम्म, So you put तो the value here. sin थीटा को मैं 2t × Δx/0.5, हम्म, तो ये हो जाएगा 4। L प्लस डेल्टा एक्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.5 प्लस डेल्टा एक्स।
निकालना क्या है? फाइंड एक्स। स्ट्रेन की अगर बात करें ना, मतलब ये थोड़ा सा, सो इफ यू नोटिस दिस, दिस ट्रायंगल, ऐसे अगर नोट करें, दिस इज 2L and this whole thing has become, this has become how much? This is L. So this has become L square plus x square actually, जिसको हम लिख रहे हैं ना, ये 0.5 plus x, this is L square plus x square. तो टोटल इज 2 अंडर रूट L square plus x square minus 2L. तो ये जो पूरी लंबाई है खींचने के बाद, इस साइड और इस साइड, minus 2L, that is the elongation, right? If I take 2 common, L common, then this is 1 plus x by L raised to power 1 by 2 minus L. 2L कॉमन ले लें अगर, तो 1 प्लस x by L raised to power 1 by 2 minus 1. अप्लाई बाइनोमियल हियर, इधर बाइनोमियल लगा लो. अच्छा. 2L 1 plus half x by L minus 1. If x by L is very small, then x square by L square, सारी टर्म को इग्नोर कर दिया, सिर्फ इसको लिख लिया. तो जो मेरी elongation है वो आ गई 2L इंटू 2x by 2L, 2x. ये मेरी elongation आ गई. ठीक है, ठीक ही थी फिर तो. अगर आधी की डेल्टा एक्स थी तो टोटल 2x ही आती है हमारी भी. ठीक है. तो स्ट्रेन कितना आ गया हमारा? um, 2x अपॉन 2L, हम्म, x बाय L. इनका कुछ हो रहा है यार. 2L 1 प्लस, एक मिनट, मिस्टेक. दिस इज, इफ यू टेक L, दिस इज x स्क्वायर बाय L स्क्वायर इनसाइड. x स्क्वायर बाय L स्क्वायर. सो ये 2L, और ये सॉरी, ये 2 कट जाएगा और एक L कट जाएगा, तो ये x स्क्वायर बाय L रह जाएगा. तो x स्क्वायर बाय L is the strain. X square by L, x square by L. स्ट्रेन निकालने के लिए x square by L डिवाइडेड बाय वन मोर L, x square by L square. स्ट्रेन आ गया. सॉरी, एक हाफ भी होगा, कोई कैलकुलेशन सही नहीं हुई. When you take this out, there is a half. This half has come from binomial. ये रहेगा. एक मिनट यार, elongation तो हो गई 2L, ये 2 कट जाएगा ना इससे फिर. हाँ, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए अगर, तो x स्क्वायर बाय L स्क्वायर तो आ रहा है. Why there is an extra 2 then? So strain is, okay.
दैट इज बिकॉज द टोटल लेंथ इज 2l, तो डिनोमिनेटर में 2l से डिवाइड होगा. ठीक. So first you got x square by l as the elongation, and then strain is elongation divided by original length 2l, क्योंकि ऐसे है. तो x square by l divided by 2l. So this is strain. So y is equal to stress upon strain. तो strain भी आ गया हमारा, x square upon 2l square. Y is known. Stress is 2w sin theta. कितना है? 2t sin theta. साइन थीटा भी निकाल सकते हैं हम. अभी हमने निकाला भी था साइन थीटा. डेल्टा एक्स अपॉन 5.5 प्लस डेल्टा एक्स. जी हो गया ना. अच्छा. साइन थीटा वो मैक्लोरियन से खोल लो इसको भी. वाई पता है, एक्स स्क्वायर पता है, एक यहाँ से भी कुछ एक्स आ मैक्लोरियन जाए. मतलब मैक्लोरियन एक्सपेंशन क्यों यूज करनी? मतलब साइन थीटा भाई बाइनोमियल, वन एंड द सेम थिंग. अच्छा अच्छा. साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी ना, एक्स अपॉन ये कितना था, 2t साइन थीटा कितना था, 1 न्यूटन. हम्म. नहीं, हाँ जी. 1 न्यूटन इसको है. वन डाल, इसको वन ही डाल लो पूरा, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा. एल पता है, वाई पता है. अच्छा. ठीक है. स्लाइटली ट्रिकी. वो काफी. मैथमेटिकली, ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा यूज हो गया थोड़ा. ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा फिजिक्स ही थी. ठीक. ओके. वैसे आंसर जो है ना इनका वो आ रहा है 1.074 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ओके. डिप्रेशन. क्वेश्चन वो करके डिप्रेशन ही हो गया. सही क्वेश्चन था बड़ा. बहुत ही स्ट्रेसफुल और Although I have stopped eating dinner, but today I'm very hungry.
मेरा भी डिनर होएगा अभी 7:30 बजे। लेट। लेट तो नहीं। लेट है भाई, 6 बजे के बाद मना होता है। वो आप लोग को मना होता है, हम लोग को नहीं। बूढ़े लोगों को। हाँ मतलब नहीं नहीं है, ये बूढ़े लोग का नहीं मतलब। नो नो, नो ऑफेंस। ये मतलब जो थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, थोड़ी उनकी उम्र लाइक जो थोड़े 40 अबव। अपना टम्मी निकाल लेते हैं हाँ। छोटी उम्र में। वो तो सर आपने आपकी गलती थी। बैड मेटाबॉलिज्म। मैं तो अपना बस पेट बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, 68 पे जाना है मेरे को। बिल्कुल वेट मत बढ़ाओ भाई। बदला मैं थोड़ा ज्यादा ही, मेरा 64 है। बस ठीक है। मेंटेन्ड। आईपी यूनिवर्सिटी। हाँ जी, मिट्टी यूनिवर्सिटी का। आईपी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ये। अच्छा। इंद्रप्रस्थ। हम्म। इंद्रप्रस्थ है क्या ये? यस। इंद्रप्रस्था। इंद्रप्रस्थ था, अच्छा। अच्छा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग एंट्रेंस। इंजीनियरिंग। ओके। यहाँ पर बीएससी के कोर्सेज होते हैं यहाँ पर। हम्म। हम्म, ये तो वो है क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला। सर वो वर्क डन वाला फॉर्मूला क्या था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। सॉरी, वॉल्यूम वाली का। नहीं तो हाफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस। हम्म। इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। स्ट्रेन स्क्वायर, अच्छा। इनटू वॉल्यूम। नहीं, वॉल्यूम वाला नहीं चाहिए मेरे को।
हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है ना। वो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। सर एरिया का कहते हैं सेम रहेगा क्या, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन? लिखा तो है डबल करना है। वी हैव टू फाइंड द वर्क डन फॉर अनदर वायर हम्म। whose radius is double, which means area is double, 4 times, and half the length. Elongation is 1 millimeter. दोनों वायर को कंपेयर करना है, दोनों की elongation सेम है, एक का एरिया 4 टाइम्स है, तो 4 तो यहाँ पे आ गया प्रोपोर्शनैलिटी में, मतलब और लेंथ हाफ है तो L/2 आ गया, तो टोटल क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया ना। एक मिनट रुक जाओ। 2 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा, 4 times the area L/2, total work done is 8 times, keeping everything same. Material is same, so Y is same. मीन डेल्टा एल भी सेम ही रहेगा। दिया हुआ है, 1 mm रखना है। अपॉन 12, और जो W2 है ये 4 R, 4R², 4πR² हम्म इंटू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। W1 अपॉन W2।
बाय 8, तो W2 आ जाएगा 16 जूल्स। 16 है। ओ। हम्म। ओके। मेरा ए। चलो सर, मैं आई पी यू ई में जाऊंगा। अभी भी होते क्या एग्जाम्स, IPUEE या जेई आ गया सब कुछ? नहीं नहीं, होता है। होता है। होता है होता है। कैसा कॉलेज है ये? इसमें अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, ये सिर्फ एग्जाम लेते हैं। आईपी इज अ यूनिवर्सिटी एंड दे हैव मल्टीपल कॉलेजेस अंडर देम। ये आईपी मतलब, मतलब गवर्नमेंट है या फिर ये प्राइवेट है? हाँ, गवर्नमेंट। आईआईटी भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही है ना, आईटी आईआईटी एनआईटीज वगैरह। यस। ठीक है, आई थिंक वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक नाउ। ठीक। सो टुमारो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। कौन सा बचा अब? अरे इसके बाद जो भी होगा। बच्चे हैं अभी भी? क्यों? तो मेरा खत्म पॉइजन है। रेशियो। कौन सा? पॉइजन पॉइजन? रेशियो। फिश रेस? अभी है पॉइजन रेशियो, होगा। 1 मिनट। हो ही गया ऑलमोस्ट, एक रह गया सिर्फ। आई थिंक पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन नहीं होता, पॉइजन होता है। ठीक है, बस वही है शायद, और कुछ नहीं बचा। पॉइजन। ठीक है, we'll finish it tomorrow then. ठीक See you, bye. है।